Okay, so let me present it to you all. Yeah, so I welcome you all to Pinnacle Guidance and Tutorials. What we are going to do today? This is our second class on reading comprehension. Fine. So, okay, if you haven't, I just want to let you know that if you haven't watched my last video regarding this is the second class, so I would recommend that if you haven't watched my previous video on this reading comprehension, so do go through it once. Fine. If you have don't much time, you can go with 1.5, 1.75 or 2 speed. Fine. And please complete that class and then start with this class. Fine. Okay, so I am just giving a recap of what we did in our last class. So what we did was, okay, so uh, the word comprehend means to understand. Fine. You are required to go through a passage, grasp its gist, and then answer the questions based on it. It involves the use of your vocabulary, your sense of language, your ability to locate meanings, your intelligence to assess the real spirit of the passage, and your capability infer conclusions from the given content. This is all that you are tested upon in reading comprehension questions. Fine. So okay, so what do you have to do in reading comprehension questions? You should remember that your answer must be based on the confirmed information that is provided in the passage. Fine. Okay, either the information is a direct or indirect form. Either it can be directly inferred, it can be a simple inference, or it can be a you can say difficult or complex inference. Fine. Okay, so next we come across, actually reading comprehension is like you are given a passage. Fine. And then based on that passage, 4 to 5 questions are being given. Fine. They just want to check whether you know, first thing, whether you know English language. Second, do you understand what is written? Third, do you have that reasoning capability, your mind, that you can gain the information what is written in the passage? These three things are tested. Fine. In just a second, let me present it to you all again. Okay, so what do you okay, so there are, actually you don't have to it is advisable actually to improve your sense of language and stock of words, vocabulary, by reading regularly and bringing new words in your day-to-day usage of language. Fine. So after this there's a homework for you all. In the comment section below, you have to write 5 words. Fine. You have to write 5 words, 5 English words. Then you have to write sentence on each of the word. Fine. In the comment section below, this is the homework after you complete this reading comprehension class. Okay, so you don't directly read the passage, and there is something a strategy that we follow in this reading comprehension questions. It's not the basic way that in this reading comprehension question is practice. Okay, the much you practice, the more you get marks in your paper. It's not like you have a formula that in which you'll keep the r value and you'll get the circumference of a circle. It's not like that. You have to
uh, l- learn the art of doing a practice reading comprehension questions. Fine. So okay, so let us discuss what is the concept we use. It is IEI. It is information that you grasp directly or indirectly, yeah, implied information, fine, from the passage. Okay. You don't have to actually because some questions are directly, or you can say straightforward, asked on the information that it is on the information given in the question, but some questions are indirectly asked. Okay, you will see later. Fine. What is elimination? Each and every question answer, if there are, let us suppose, 4 options to a question, fine, you don't have to guess any question. You don't have to choose any option. You have to eliminate all the options, that the option which is not eliminated by you becomes your uh, correct answer. Fine. So if it is written over there, option A, option B, option C, option D, fine, you have to prove. Let us suppose option C is your correct answer. You have to prove option A, option B and option D as incorrect. Fine. And then you have to prove option C as correct. फाइन. ओके, तो ये एलिमिनेशन हो गया. इन्फरेंस का मतलब हो गया आप उससे क्या ले पा रहे हो, व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम दैट सेंटेंस ऑफ पैसेज. फाइन. अब इन्फरेंस सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. मैंने पिछले उसमें इन्फरेंस के एग्जांपल्स दिए थे, तो एग्जांपल्स के लिए आप रेफर कर लीजिए. वही मैंने बस एक रिकैप के लिए आपको ये बताया है कि IEI फॉर्मूला क्या होता है. तो स्टेप्स क्या है, हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं. ठीक है. उसके बाद हम लोग को जो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दी है वो रिटेन करना है. ठीक है. फिर हमको पैसेज पढ़ना है. फिर पैसेज में हम लोग को जो लगे, जिस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर उस लाइन में है, तो हम लोग को उस लाइन को, अगर आपका पेपर बेस्ड है तो अंडरलाइन करना है. अगर आपका पेपर बेस्ड नहीं है तो कहीं पे हम लोगों को अपने वो रफ पेज पे नोट डाउन कर लेना है, शॉर्ट हैंड कैसे क्वेश्चन है. ठीक है. एंड आफ्टर दैट हम लोग को फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यूजिंग IEI फॉर्मूला. फाइन. एनी डाउट? ओके. एंड यस, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग माई प्रीवियस वीडियोज़ और माई प्रीवियस क्लासेस या ये वाली क्लासेस, आप हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में यू कैन कमेंट योर डाउट, क्वेरी जो भी है. मैं पर्सनली आपको मैसेज करूँगा, मतलब वहाँ पे आपका रिप्लाई दे दूँगा, और यू विल गेट माई excuse me, yeah, you will get my mail in the description of this video, from where you can send me your query, your doubt or anything. Fine. Okay, so this is all about the concept behind the concept which we'll use in reading comprehension part. Fine. So moving on with the questions. Okay, so I'll give you see, this is a bit more tough than the last one. Okay, or you can say on the same level. Fine. और yeah, ये reading comprehension is one of the most important part, if I say, in any of your paper. If you are aiming for NEET, SSC, CGL, CHSL or any of the paper. Fine. Okay, so I'll give you 1.5 minutes, or you can say 90 seconds to read the whole passage, and then we'll move on with the questions. Your time starts now.
आई सपोज आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि पूरा पैराग्राफ में लिखा क्या था। ओके, सो लिखा गया, डिस्कशंस ऑन ड्रग एडिक्शन शुड ऑल्सो बी कंसर्न्ड with the vast majority of people who are not addicts। ठीक है, यहाँ पे बात क्या हो रही है, ड्रग एडिक्शन के बारे में। ठीक है, ये ड्रग एडिक्शन का जो डिस्कशन होता है, शुड ऑल्सो बी कंसर्न्ड। अब वो किसको भी कंसर्न होना चाहिए, हम लोग को उसको भी कंसर्न होना चाहिए विद द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, क्योंकि ड्रग से जो एडिक्ट होते हैं वो मेजॉरिटी में तो नहीं है तो वो भी बहुत कम ही लोग होते हैं जो ड्रग से एडिक्ट होते हैं, बट हम लोग को कंसर्न सिर्फ और सिर्फ उनको भी नहीं रखना चाहिए जो कि ड्रग एडिक्ट्स हैं, हम लोग का कंसर्न उनसे भी होना चाहिए जो कि ड्रग एडिक्ट्स नहीं है। तो इसी चीज़ पे डिस्कशन शुड बी कंसर्न विद द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर नॉट एडिक्ट्स। ठीक है, देयर होम्स एंड लाइव्स आर इनसिक्योर। देयर की किसकी बात हो रही है, देयर होम्स एंड लाइव्स आर इनसिक्योर बिकॉज आर नारकोटिक्स लॉज ड्राइव सच पीपल टू क्राइम। ठीक है, अब ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। Okay, so yeah, their homes and lives are insecure because our narcotic laws drive such people to crime. Who such people to crime? अब देखिए, such people to crime, कौन से such people? जो लोग ड्रग्स कर रहे हैं उनके बारे में बोला गया है कि such people to crime। ठीक है, अब वो कैसे क्राइम हो जाएगा, अब जो कि ये देखिए, हाँ देखिए, ये ड्रग्स के लिए उनको पैसे चाहिए। ठीक है, फॉर दीज मनी, ठीक है, दिल स्टील, रॉब एंड इवन किल। ठीक है, अब ये देयर इनसिक्योर जो कि एडिक्ट्स नहीं है। फाइन, द ड्रग एडिक्ट इज ऑलमोस्ट नेवर डेंजरस बट व्हेन ही इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स। द ड्रग एडिक्ट इज ऑलमोस्ट नेवर, मतलब बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब वो नहीं डेंजरस है, व्हेन ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ड्रग्स। ठीक है, वॉट मेक्स हिम डेंजरस इज डेस्परेट नीड फॉर मनी टू बाय द नेक्स्ट डोज। अब इस बार के लिए वो जब ड्रग्स के अंदर के इन्फ्लुएंस में होता है तब तो वो बिल्कुल डेंजरस नहीं होता है, बट वो डेंजरस कब बनता है, जब वो अपने नेक्स्ट ड्रग्स के पैसे कहाँ से वो जुगाड़े, उसके लिए वो क्या कर सकता है, क्राइम कर सकता है। तो वो जब क्राइम कर सकता है क्या वो बन जाता है, वो डेंजरस बन जाता है। फाइन, ड्रग्स आर अवेलेबल ओनली इन एन इलीगल ब्लैक मार्केट। ड्रग्स कभी नॉर्मल ऐसे तो मतलब किसी का कोई शॉप तो होती नहीं है। ठीक है, ड्रग पैडलरी से होते हैं और वो कि इलीगल होते हैं ब्लैक मार्केट्स। ठीक है, द कॉस्ट आर स्टुपेंडस। अब आगे इसमें बताएगा, अब देखिए, द कॉस्ट ऑफ स्टुपेंडस। अब ये स्टुपेंडस आपको क्या लगता है कि क्या वर्ड होगा, अब देखिए, कॉस्ट कभी भी मतलब जब आप देखेंगे कॉस्ट का क्या हो सकता है, कॉस्ट में बहुत ही ज़्यादा स्टुपेंडस मतलब आपको अचंभव करने वाला हो सकता है। ठीक है, जिससे आप अचंभव हो जाएं, और कुछ भी बहुत ज़्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है, नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, कॉस्ट आर नेवर नॉर्मल इस चीज़ के, एटलीस्ट ड्रग्स का। एंड ठीक है, जब बहुत ही ज़्यादा होगा जिससे आप सरप्राइज हो जाएं या किसी अमेज हो जाएं। ठीक है, इसका मतलब यही सब होता है। एंड दिस व्हाट ड्राइव्स द एडिक्ट टू स्टील, रॉब एंड इवन किल। फाइन, ओके, सो अब यहाँ तक आ चुके हैं तो अब इसके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक है, पैसेज तो अब आप पूरा समझ लिया। ठीक है, तो आई एम गिविंग 20-30 seconds to go through this question.
फाइन. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ठीक है, डिस्कशंस ऑफ ड्रग एडिक्शन आर जनरली concerned with first addicts, second non-addicts and third black marketers. अब आप जब आप देखते हैं यहाँ पे किसकी बात आ रही थी डिस्कशन में कंसर्न्ड should be concerned with the vast majority who are not addicts. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर डिस्कशंस ऑफ ड्रग्स आर जनरली, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शुड ऑल्सो भी, हम लोग को उनको भी इंक्लूड करना चाहिए. बट अभी सिर्फ कौन इंक्लूड रहा है, सिर्फ नॉन एडिक्ट्स, सिर्फ एडिक्ट्स लोग इंक्लूड हो रहे हैं, बट होना शुड ऑल्सो भी, होने कौन भी चाहिए, नॉन एडिक्ट्स भी इंक्लूड होने चाहिए. ठीक है. तो इसको क्वेश्चन अब वो बोल रहा है, वहाँ पे ऑथर बोलना क्या चाह रहा है, जनरली हम लोग एडिक्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, और हम लोग को और कौन इंक्लूड करना चाहिए, हम लोगों को उस डिस्कशन में नॉन एडिक्ट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए. फाइन. तो ऐसे ऑथर ने लिखा है, ऑथर ने सिर्फ इतना लिखा, शुड ऑल्सो बी कंसर्न्ड विद हु आर नॉट एडिक्ट्स. ठीक है. तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जनरली जो एडिक्ट्स हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. तो और क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया, डिस्कशन ऑफ ड्रग एडिक्शन आर जनरली कंसर्न्ड विद, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ एडिक्ट्स. फाइन. ओके. सो इट्स लाइक here you can say that in the beginning of the passage the author makes the point that discussion also be concerned with the non-addicts, as till now the discussion generally have been concerned with addicts. Fine. This was the answer to this question. So answer will be addicts. Fine. Okay. So moving on to our next question. Next question is addicts take to criminal acts because. Okay. अब क्यों करते हैं, अब हम लोग ये देखेंगे. ड्रग्स मेक देम लूज सेल्फ कंट्रोल. हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था कि वो जब अंडर द इन्फ्लुएंस में होते हैं तो वो नेवर डेंजरस होते हैं, ऑलमोस्ट नेवर डेंजरस. ठीक है. तो एटलीस्ट ये तो नहीं है ड्रग्स मेक देम लूज सेल्फ कंट्रोल, तो फर्स्ट तो नहीं है. ठीक है. लॉ इज पावरलेस अगेंस्ट देम. ठीक है. यहाँ पे क्या किया है, नारकोटिक्स लॉज. ठीक है. ये क्यों वो लोग करते हैं, क्योंकि नारकोटिक्स लॉज उनके अगेंस्ट हैं, इसीलिए तो वो लोग क्राइम करते हैं. अगर किसी चीज़ को रोका जा रहा है आपको करने के, तो आप उसके अगेंस्ट में जाओगे. तो वो क्या चीज़ है जो उन लोगों को रोक रही है, वो नारकोटिक्स लॉज हैं. ठीक है. तो ये तो नहीं है, एटलीस्ट लॉ इज पावरलेस अगेंस्ट देम. ठीक है. अब हम लोग 2 देखते हैं. द हैबिट ऑफ रॉबिंग एंड स्टीलिंग इज हार्ड टू ब्रेक. द हैबिट ऑफ रॉबिंग एंड स्टीलिंग इज हार्ड टू ब्रेक. पूरे कहीं पे भी कहीं रॉबिंग एंड स्टीलिंग कहीं पे लिखा है कि इन लोगों का हम नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी को रॉब और स्टील के लिए उसका एडिक्ट है, नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा है. वो ड्रग एडिक्ट्स के बारे में लिखा है. ड्रग एडिक्ट्स लोग पैसे, मतलब नेक्स्ट ड्रग के डोज के लिए वो जो मनी कलेक्ट करना है उसके लिए वो स्टील और रॉब करते हैं. फाइन. तो अब क्या आया, हम लोगों का ये सिर्फ 3 आंसर बचा. 3 क्या है, दे नीड लार्ज सम ऑफ मनी टू बाई ड्रग्स. फाइन. ओके. जो हम लोग को कहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखा था. वॉट मेक्स हम डेंजरस इज द डेस्परेट नीड फॉर मनी टू बाय नेक्स्ट डोज. यहाँ लिखा है. फाइन. सो ये वाला लाइन. ओके. पहली चीज. दूसरी लाइन इनको कहाँ पे जाती है, ड्रग्स आर अवेलेबल, ये वाली लाइन. द कॉस्ट इज स्टुपेंडस, मतलब बहुत हाई, एंड दिस वॉट मेक्स ड्राइव टू एडिक्ट टू स्टील, रॉब एंड इवन किल. फाइन. ये वाली लाइन, ये 2 लाइन आपको उनको रेफर करती है कि वो लोग कब डेंजरस हो जाते हैं, जब उनको पैसे चाहिए होते हैं नेक्स्ट डोज के लिए. फाइन. ओके. थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑथर सीम्स
टू क्रिटिसाइज द नार्कोटिक्स लॉज। अब ये बताइए, अच्छा, आई एम गिविंग यू 30 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट गाइस। ओके, सो आपने वैसे ही किया होगा। अब आपने बोल रहे होंगे द ऑथर सीम्स टू क्रिटिसाइज द नार्कोटिक्स लॉज। हाँ यार, आपको तो लग रहा होगा यहाँ पे बोला गया बिकॉज आर नार्कोटिक्स लॉ ड्राइव सच पीपल टू क्राइम। फाइन, ठीक है। अब आपने ये पूरी लाइन जैसे ही पढ़ी ना, ठीक है, आपको पता चल गया आंसर आपका 4 है, बट हमको सबको एलिमिनेट करना है। मैंने पहले ही बोला था कि ये एलिमिनेशन प्रोसेस करना है, ना कि हम लोगों को ये 4th वाला सीधे पिक कर लेना है। कहीं पे लिखा गया है कि नारकोटिक्स लॉज क्या बहुत लीनियंट हैं, उसकी वजह से ये सारे चीज़ें हो रही हैं? कहीं पे पूरे उसमें नारकोटिक्स लॉज आर लीनियंट ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। तो हम लोग का पहला डिलीट हो गया, हमारा पहला ऑप्शन नहीं रहा। सेकंड क्या लिखा गया? बीइंग टू कॉम्प्लिकेटेड। द ऑथर सीम्स टू क्रिटिसाइज नार्कोटिक्स लॉज फॉर बीइंग टू कॉम्प्लिकेटेड। क्या ऐसा कुछ लिखा गया है कि मतलब नार्कोटिक्स आर बीइंग टू कॉम्प्लिकेटेड? नहीं, कहीं हमसे इन्फर भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही। इन्फर हो तो मैं उसको लो ऑप्शन छोड़ दूं, बट इन्फर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या लिखा है? बीइंग इनएफेक्टिव, ऐसा भी नहीं कहीं लिखा गया है। बट ये वाले आपने लाइन में जैसे ही आपने देखा, देयर होम्स एंड लाइव्स आर इनसिक्योर बिकॉज आर नार्कोटिक लॉज ड्राइव सच पीपल टू क्राइम। फाइन, ओके। सो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? देयर होम्स एंड लाइव्स आर इनसिक्योर बिकॉज आर नार्कोटिक लॉज ड्राइव सच पीपल टू क्राइम। मतलब ये नार्कोटिक्स लॉज हम लोग क्यों वहाँ पे उनको क्रिटिसाइज कर रही है? क्योंकि उन लोगों को ये ड्राइव सच पीपल टू क्राइम, ये क्राइम करवाने पे उनको मजबूर कर देती है। इसीलिए नार्कोटिक्स लॉज को वो बोल रहे हैं कि मतलब उसके बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? ड्राइविंग एडिक्ट्स टू क्राइम। फाइन, ये स्ट्रेट था। ये ऐसी चीज़ें देखिए, स्ट्रेट इन्फॉर्मेशन आ रही हैं आपके, डायरेक्ट है ये, इसलिए इजी मैं मानता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गेटिंग 30 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। सो बार बार मैंने आपसे क्या बोला था? अब आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लेट अस सपोज, ठीक है, आपने वोकैबुलरी अच्छे से की, बट ये वर्ड जब आपने किया ये वर्ड आपके नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग ने क्या पता है? वेरी हाई पता है, फुलिश पता है, शॉकिंग पता है और इलीगल पता है, ठीक है। ये 3 हो सकते हैं, ओके, ठीक है। उसके तक अब मैं सारी चीज़ें रखूँगा। क्या क्या था? वेरी हाई था, फुलिश था, शॉकिंग था, इलीगल था। द कॉस्ट आर, हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे। द कॉस्ट आर इलीगल, नहीं ना, इलीगल तो काम हो सकता है, बेचना हो सकता है, कुछ काम इलीगल होता है। कॉस्ट आर नेवर इलीगल। फाइन, ओके। उसके बाद क्या है? शॉकिंग। द कॉस्ट आर शॉकिंग, ठीक है। अब शॉकिंग का मतलब ये होता है, ठीक है, बट हमें कैसे पता यहाँ पे कॉस्ट आर शॉकिंग? उनके लिए तो शॉकिंग नहीं है ना, उनके लिए तो शॉकिंग यहाँ पे है नहीं। इसका तो मतलब होता ही है कि अमेजिंग हो जाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। बट इनके लिए तो शॉकिंग चीज़ वाली तो चीज़ है नहीं। द कॉस्ट आर फुलिश,
कभी भी कोई कॉस्ट फुलिश नहीं हो सकता है, कोई आदमी फुलिश हो सकता है, कोई एनिमल फुलिश हो सकता है, कोई किसी का काम फुलिश हो सकता है, बट कभी कॉस्ट फुलिश नहीं हो सकता। बट यहाँ पे एक और आया था, द कॉस्ट आर वेरी हाई। हाँ, ये हो सकता है ना। अब आप देखिए, इसका दो मतलब है, वेरी हाई भी और शॉकिंग भी, ठीक है। बट यहाँ पे बैट कौन ज़्यादा रहा है, फिट कौन सा ज़्यादा हो रहा है? द कॉस्ट आर शॉकिंग, नहीं, फिट नहीं हो रहा ना। द कॉस्ट आर वेरी हाई, यहाँ पे वो फिट हो रही है चीज़। कॉस्ट शॉकिंग नहीं हो सकता, ठीक है, प्राइस शॉकिंग हो सकती है, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। कॉस्ट यहाँ पे वेरी हाई हो सकता है, फाइन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, यू आर गेटिंग 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हाउस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब जो, ठीक है, मैं हर एक का मतलब बताऊंगा, फाइन, आप सॉल्व करो। तो हम लोग, ठीक है, ओके, द टोन ऑफ द ऑथर ऑफ द पैसेज कैन ऑल बी द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, फाइन, you need to understand the meanings of each of the options that are written over here, fine. What informative, what revealing, what critical, what metaphorical means, fine. So informative and revealing both tend to increase the knowledge, fine. The purpose to instruct or enlighten or inform, fine. This is actually informative and revealing. These two are clearly one of the objects of the author as he wishes us to inform the situation, fine, okay. Critical, actually critical is marked by a tendency to find and call all the attention and what do you mean by critical? Critical मतलब anything which is very critical situation, you know ना, किसी पेशेंट की critical situation हो जाती है, so that is marked by very law, मतलब very flaws and errors वहाँ पे होगी, ठीक है. verge of getting death, fine, that is also very critical situation, fine. verge of getting ending, so यहाँ पे भी मतलब वो चीज़ वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या बोलते हैं, ऑथर, फाइन. एंड लास्ट, व्हाट इज मेटाफोरिकल? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और रिलेटिंग टू अ मेटाफर. अब मेटाफर क्या होती है? अब मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ पे कोई वर्ड और फ्रेज अप्लाइड टू एन, एक्चुअली मेटाफर इज लाइक अ फिगर ऑफ स्पीच in which word is applied to an object or action to which it is not literally applicable, ठीक है. अब मेटाफर वो एक्चुअली में वो उससे रिलेटेड नहीं होगा, लिटरली से रिलेटेड नहीं होगा, बट वहाँ पे वो यूज़ कर दिया गया वर्ड, तो वो मेटाफोरिकल हो गया, ठीक है. तो हमारा आंसर 4 है, फाइन, मेटाफर. ओके, सो गाइज आई होप यू लाइक द सेशन. एंड या आपके पास कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड यस, आप मुझे मेल भी कर सकते हो कोई भी आपकी क्वेरी या डाउट हो, ठीक है. सो या, एंड यस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे हो सके कोई भी अगर मतलब कोई भी स्टूडेंट हो जो जिसके पास ट्यूशन नहीं हो और अभी ये कोरोना का केस मतलब पैंडमिक चल ही रहा है, सो एटलीस्ट वो उसकी प्रिपरेशन ना रुके अपने एग्ज़ाम के लिए, फाइन. सो
प्लीज़ उसके साथ शेयर कर देना, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट वीडियो आए तो यू गेट माई नोटिफिकेशन. फाइन. हैप्पी एंडिंग, हैप्पी लर्निंग गाइस. बाय. Ending the lecture.